Good morning, my genius students. How are you all? I hope you all are fine and safe too, students. So, students, in our previous video, we have started our chapter, that is chapter 2, India, Climate and Natural Resources, right? In that we have learned something about that what is climate and what are the natural resources of India, fine? And we have already learned the map also, fine? The map of January, in which that we have learned air pressure and wind direction, and the same similarly the map of July, in which we have learned the air pressure and wind direction. After that we have started the three seasons. We have started the seasons, that was winter, summer, right, and monsoon. So we have already learned about the winter and the summer, but monsoon is remaining, fine. So in monsoon, what was the remaining, what was the remaining portion was that we have only read that portion, but we have not understand about the monsoon. As I know that you are know that what is the monsoon season and how many months are there in the monsoon season, we have already learned this about. But today we will going to learn something about deep about the monsoon season. So, monsoon is a very important season of India. As we all know that monsoon is a very important season of India. It lasts from June to September. India receives approximately 80% rainfall during these months. Right? So, the winds blowing across the Arabian Sea enter India through the Malabar coast of Kerala. That region receives more than 300 centimeters of rain. The winds blowing across the Bay of Bengal brings the rainfall to the eastern parts of India, like western Assam, Meghalaya, etc. So, the retreating monsoon winds bring rainfall to Punjab, Himachal Pradesh, and Uttarakhand in the month of October and the November. So, now, if we talk about the monsoon, so monsoon is a very important season of India, and it has received the 80% rainfall approximately during the monsoon season. Now, the winds blowing across the Arabian Sea and enter through the Malabar coast of Kerala. See, I'm repeating again this sentence. The winds blowing across the Arabian Sea, enter India through the Malabar coast. Fine, of Kerala. That region receive more than 300 centimeters of rain. कितना उस रीजन में कितनी रेनफॉल आती है? तो 300 सेंटीमीटर ऑफ रेन. द विंड ब्लोइंग अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल. अब विंड्स कहाँ ब्लो हो रही है? क्योंकि पहले हमने विंड्स डायरेक्शन वाला मैप समझ ही लिया है, तो अब कहाँ विंड्स जो है वो फ्लो हो रही है? तो हो रही है बे ऑफ बंगाल में. ठीक है. रेनफॉल टू द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक वेस्ट ईस्टर्न पार्ट. ठीक है. बे ऑफ बंगाल, यू कैन सी द मैप हियर. यहाँ पे मैप भी है. पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ? व्हेन स्टार्ट्स द अरेबियन सी. नाउ इट इज द ईस्टर्न पार्ट, दैट इज द बे ऑफ बंगाल, राइट. बे ऑफ बंगाल एंड ब्रिंग्स अ रेनफॉल टू द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक वेस्ट बंगाल एंड असम एंड एक्सेट्रा. एंड वो जो है ब्रिंग करती है ईस्टर्न पार्ट सी ऑफ इंडिया की, वो क्या करती है? लाइक वेस्ट बंगाल. कहाँ पे? वेस्ट बंगाल से आसाम, मेघालय एक्सेट्रा. हम पूरा वेस्ट पार्ट नहीं ले सकते. ठीक है. वेस्ट का पूरा पोजीशन चेंज हो गया, बट इट वाज द ईस्टर्न पार्ट ही ओनली. सी, वेस्ट बंगाल, इट इज द नेम, दैट इज द वेस्ट बंगाल. देन आसाम, you can see the northern eastern side Assam was there, right, and then the Meghalaya, that was also that side, right. So this parts receive the what rainfall. After that what will happen? The retreating monsoon wind bring rainfall to Punjab. अब वो ईस्टर्न से कहाँ rainfall winds direction change होती है? Then upper side, that was Punjab, right. Here it is written Punjab, Himachal Pradesh, and in Uttarakhand in the months of October and the November. So in the months of October and November, the wind directions were changed, and it would come in the month of October and November. Now, what was the effect of climate of human life, right? So, अगर ये सारी changes होते रहती है, so what were the effect? As I told you before that every state, the persons who are living in each and every state, they have a different climate in their own state and own weather also. So if we talk about the north side, there was a change climate. We will see the climate and the weather was a change, and similarly the same thing was the west side. That was another thing with
that only that the climate and the weather will be a change. So according to this, what were the effect was there in the human life, हमारी लाइफ में इफेक्ट क्या होती है? जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर हम नॉर्थ की साइड चले जाएंगे तो हमें बहुत ठंडी लगेगी, राइट? बट वो लोग जो होते हैं वो इस चीज़ से क्या होते हैं, यूज टू होते हैं, दे वर यूज टू ऑल दिस थिंग्स। तो क्या होता है कि उनको इतनी दिक्कतें नहीं आती है, फाइन। बट अगर वो यहाँ पे वेस्ट साइड आ जाए तो उनको भी इतना ठंडी जैसा ना लगे। क्यों? क्योंकि उनको इतनी सारी ठंडी पहले से उन्होंने बैर करके रखी हो, तो ये ठंडी तो उनके लिए कुछ भी ना हो। सो अलग अलग साइड से, अलग अलग डायरेक्शन से जिस तरह से एटमॉस्फेयर होता है, उस तरह से उन लोगों की रहने की एटमॉस्फेयर वगैरह सब कुछ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो now if we talk about the first point, that climate has a tremendous effect on human life. This effect is visible in the diet, lifestyle and the nature of the people also. यही नहीं, बट ये जो सारी चीज़ें हैं वो डाइट, ठीक है, लाइफस्टाइल, नेचर, सब में इफ़ेक्ट अलग तरीके से आती है। आपको पता ही हो, जब ठंडी आती है तो हम सारी कैसे गर्म चीज़ें खाना प्रेफर करते हैं, राइट? बहुत सारी गर्म चीज़ें होती हैं जो हमें हेल्दी भी लगे एंड वो हमारी बॉडी को सही भी रखे, राइट? घी वगैरह हम बहुत यूज़ करते हैं उस टाइम पे खाने के लिए। इवन दो शीरा वगैरह जो होता है वो भी हम बहुत सारी खाते हैं चीज़ें ठंडी के टाइम में स्पेशली। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें ठंडी में खाना भी ज़रूरी है एंड वो अच्छी भी होती है हेल्थ के लिए। सिमिलरली गर्मी आ जाएंगी ना तो हम इतना सब खाना पीना प्रेफर नहीं करेंगे, हम नॉर्मली हल्का फुल्का खाना ही प्रेफर करेंगे। तो ये जो ठंडी के टाइम पे क्या होती है कि ये चेंजेस आते हैं। तो सिमिलरली हर एक रीज़न के अलग अलग लोग होते हैं, उनकी इफ़ेक्ट्स, डाइट, लाइफस्टाइल सब कुछ अलग मिल जाएगा। जैसे मैंने अपने सोशल लाइफ की चैप्टर जो समझाया था, चैप्टर इंडिया का, दैट वाज अ चैप्टर 9, उसमें मैंने क्या समझाया था कि नॉर्थ की रहनी कहनी, उनका खाना पीना, उनके वियरिंग स्टाइल, ड्रेसेस वगैरह बिल्कुल अलग। इवन दो द ऑलमोस्ट द पीपल हु आर लिविंग फ्रॉम द जम्मू कश्मीर साइड, शिमला साइड, दे वर ऑल्सो प्रेफरिंग द नॉन वेज ऑल्सो, लाइक फिश एंड all that. Even the south side, northeast side, fish एंड दैट राइस, राइट? ये हमारा फूड स्टेपल था, आपको याद हो तो, ठीक है? तो उनके घर की स्टाइल भी अलग होती है, राइट? रूफ स्टाइल मैंने आपको बोला था, स्लांट होते हैं, जैसे कि बारिश वगैरह कुछ भी है वो बारिश के स्नो वगैरह कुछ भी है तो इजीली वो स्लिप होके नीचे ही गिरे, राइट? ऐसी हमने यहाँ पे नहीं देखी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और वहाँ की सिस्टम बिल्कुल क्या होती है, बिल्कुल अलग होती है। Rajasthan faces water scarcity, hence the most of the houses have old terraces to store a water. See, अभी राजस्थान में जो है वहाँ पे आपको भी पता है कि वहाँ पे जो रेन होती है वो इतनी नहीं होती, वहाँ पे स्केर्सिटी है किसकी, रेन की। तो उनके यहाँ कैसे हाउसेस बने होते हैं, लाइक वॉल टेरेसेस जो होते हैं उसमें इतनी कैपेसिटी वगैरह होती है, जो भी बारिश का पानी वगैरह है वो उनका क्या हो जाए, स्टोर हो जाए, राइट? आजकल ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ वैसे भी आपको पता ही है कि निकली है कि हमें बारिश का पानी स्टोर करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? तो राजस्थान के यहाँ आपको रूफ जो होगी वो स्लॉप साइड नहीं मिलेगी, स्लॉप की तरह नहीं मिलेगी, जो अपने कश्मीर है, शिमला है, वहाँ पे हमने देखी, जो रेन एरिया में हमने देखी थी, स्नो एरिया में देखी थी। क्यों ऐसा राजस्थान में नहीं मिलेगा? क्योंकि वहाँ पे स्केर्सिटी है, वहाँ पे थोड़ी इतना पानी है, राइट? वहाँ पे थोड़ी इतनी क्या कहते हैं, स्नोफॉल वगैरह होती है, वहाँ पे तो पानी की ही कमी है, ऐसे। So people in the northern India use woolen garments to protect themselves from extreme cold, while people of South India prefer a cotton clothes to protect themselves from heat. See, सेम चेंजेस are there अगेन। देखो वुलन क्लॉथ्स गारमेंट जो होते हैं, आपने देखा ही होगा, नॉर्थ के साइड जाते हैं तो ऑलमोस्ट वो लोग इतनी वहाँ पे ठंडी होती है, राइट? तो वो लोग वैसे कपड़े प्रेफर करती हैं जिससे उनको प्रोटेक्ट हो। बट अगर हम साउथ के साइड जाओ, इवन दो हमारे वेस्ट के साइड भी देखो, हम ऑलमोस्ट कॉटन के कपड़े प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हीट इतनी होती है, गर्मी इतनी होती है जो हमसे बैर नहीं होती है, राइट? मई मंथ आपको पता ही है, जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में ही बताया था। क्यों? और समर में हमें छुट्टियां मिलती है क्योंकि हमारे यहाँ इतनी हीट होती है, इतनी गर्मी होती है, जो नॉर्थ के साइड नहीं होती है। उनके यहाँ विंटर में छुट्टियां इसलिए पड़ती है क्योंकि वहाँ पे इतनी कोल्ड होती है जो यहाँ पे नहीं होती। तो ये चेंजेस आपको मिलेंगे, तो ये चेंजेस ह्यूमन लाइफ में भी इफ़ेक्ट करते हैं, राइट? The people of the desert region wear a loose cotton clothes to prevent themselves from the continuous heat and protect themselves from the sun blowing across the desert. They also cover their heads with a cloth piece
large handkerchief to protect their head and hair from the sand. और अपने पता ही होगा कि वो जो राजस्थान हमारा पूरा का पूरा एरिया है वो सैंडी एरिया है, राइट. वहाँ पे डेजर्ट वगैरह आपको बहुत दिखेंगे, तो वहाँ की मिट्टी जो है वो उड़े तो क्या होती है, बालों को और फेस को पूरे में क्या हो जाए, सैंड सैंड मिट्टी मिट्टी आ जाए, वो ख़राब कर लेती है. तो वो लोग क्या करते हैं, लार्ज हैंकरशिप से और द क्लॉथ ऑफ पीस से वो अपने हेड को भी कवर करते हैं. क्यों कवर करते हैं, क्योंकि वो जो गरम गरम जो हीट होती है सैंड की होती है, जो क्या होती है वो डायरेक्टली फेस पे और बालों पे आती है, जिससे दिक्कत क्या हो जाती है, उनकी इफ़ेक्ट होती है जो सही नहीं लगती, राइट. हम भी आप यहाँ पे देखते ही हैं, जब गर्मी वगैरह होती है तो हम कैसे पूरा का पूरा फेस वगैरह कवर करके ही निकलते हैं. हम क्यों करके निकलते हैं, ड्यू टू हीट, राइट. आप नॉर्थ में जाओगे तो ऐसे वो कवर करके नहीं निकलेंगे, बट वो वुलन क्लॉथ से ऐसे कवर होंगे ना ठंडी की वजह से, जिससे उनको मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि वो उसको कवर कर देते हैं वार्म कपड़े, राइट. सो ड्यू टू द वेरिड क्लाइमेट कंडीशंस अक्रॉस इंडिया, द पीपल ऑफ गुजरात आर यूजुअली एंगेज इन बिजनेस. The people of Punjab are mostly soldiers, while the people of northern India are involved in agriculture. Similarly, the nomads of deserts are engaged in animal husbandry. See, now if we talk about the conditions of climate, right, the you know that almost we have heard that the state of Gujarat, those persons who are living in Gujarat, almost they have their own business, so they were engaged there in their business, they were busy and their lifestyle were busy in their business. Similarly, the people of Punjab, you are seeing that mostly people of Punjab are soldiers, right. ऑलमोस्ट आपने देखा ही होगा कि नॉर्थ के साइड के लोग होते हैं, इवन तो पंजाब के साइड के भी बहुत देखे होंगे जो सोल्जर होते हैं. बट नॉर्थ इंडिया की बात करें उसमें काफ़ी अलग स्टेट्स भी आ जाए, सो वो ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर में भी इतने ही इन्वॉल्व होते हैं. सो अगर हम बात करें नोमैड्स, राइट, ऑफ डेजर्ट के, तो वो ऑलमोस्ट किस में, एनिमल हस्बेंड्री में इंक्लूडेड होते हैं. सो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फियर लोगों को बहुत इफ़ेक्ट करता है, और उसी की वजह से उनकी लाइफस्टाइल, उनका रहना कहना बिल्कुल क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, राइट. एज यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी ऑल दिस थिंग्स इन लर्न द चैप्टर 19 दैट इंडियन सोशल लाइफ, द डिफरेंट थिंग्स आर देयर इन इंडिया, स्टिल वी ऑल आर वन, राइट. दैट्स वाई इंडिया यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, कॉल द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. वाई द वर्ड दिस यूज दैट इंडिया इज अ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, बिकॉज वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, स्टिल we are one. We are celebrated the national festivals like Republic Day, right, and then 15 August and 2nd October, that was the Gandhi Jayanti. Still we are celebrating together all over the nations, right. In India पूरे के पूरे में आपने देखा ही होगा that we have celebrated these three nations equally, right. Why it is, because we have the different culture, we have different diversities, then also we are one. Wheat is a staple food of the people of the coastal area of Gujarat, while rice, fish from the special diet of the people of Tamil Nadu, Kerala and West Bengal. As we know that the coastal area of the south, so if we talk about the south, the coastal area, those persons who are living the Tamil Nadu, Kerala and the West Bengal in the coastal area, they have their staple food. What they have their staple food, that of fish and the rice, right. And similarly, we also that coastal areas of Gujarat, the persons are prefer that rice also, but we have wheat also. टोटली तो ऐसे नहीं हो कि सब राइस ही प्रेफर करते हो, बट ऑल नो दैट वी प्रेफरिंग बोथ, दैट वीट एंड राइस बोथ, राइट. सो नाउ रिसोर्सेज, व्हाट इज रिसोर्सेज, दिस ऑल वी हैव लर्न अबाउट द क्लाइमेट ऑफ द ह्यूमन लाइफ, कि भाई ह्यूमन लाइफ का क्लाइमेट कैसे, क्लाइमेट जो है वो ह्यूमन लाइफ पे इफ़ेक्ट करता है, किस तरह से उसकी चेंजेस वगैरह आती है, किस तरह से वो इफेक्टिव होता है. बट अब हम करेंगे कि मीनिंग क्या है रिसोर्सेज की, कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज, फाइन. डिफरेंट हमारे क्या कहते हैं कि भाई डाइवर्सिटीज़ वगैरह है, डिफरेंट चीज़ें हैं, प्लेटाउ प्लेन्स अलग अलग. हमारी जो इंडिया जो एग्रो बेस्ड कंट्री है, ठीक मानी जाती है, तो उसकी जो इफ़ेक्ट्स वगैरह है वो क्या है, कैसे डिफरेंट है, और किस तरह से ये मिनरल्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो हमें बहुत इफ़ेक्टिव लगते हैं. So everything available in our environment which can be stored and used based on its equality, capacity and utility, and which become our heritage can be termed as a resources, right.
Resources are also those that can fulfill certain aims, objectives, and offer concrete solution towards problem. Anything that can be aimed and used to accomplish human necessity and also become a resources. The people of the earlier times were not aware of the mineral available below the surface of the soil. Hence, it could not be utilized. That is why those minerals are not considered as a resources, but these resources are very useful for modern men. The main the main things is that help in man welfare and satisfy their demands as resources for a man. Now, see, अगर मैं हम पहले पूरा डीपली मीनिंग समझे कि व्हाट इज रिसोर्सेस, तो जो चीज़ें इंडिया में पहले से पाई गई है एनवायरमेंट में, ठीक है, जो बेस्ड होती है उसकी क्वालिटी, कैपेसिटी एंड यूटिलिटी पे, जो विच इट बिकम्स आवर हेरिटेज, राइट. हमें जो ये सब मिला है, राइट, फॉरेस्ट की बात ले लो, डिफरेंट बहुत सारे आपने ट्रीज़ ये वगैरह देखे होंगे, प्लांट्स वगैरह हैं जिसमें औषधियाँ भी पाई गई है. तो ये सारे जो रिसोर्सेज है ना, जो आयुर्वेदिक बेस पे, और इन सारी चीज़ों से ही दवाइयाँ वगैरह बनती है, राइट. ये सारी जो चीज़ें हैं ना पहले से हमें मिली गई है. हमारी लैंड जो हो वो टोटली फर्टाइल है कि नहीं है, नो डाउट उसमें हम देखते हैं. बट आपने वो भी चीज़ नोट की होगी कि इवन द नॉर्दर्न साइड, राइट, जो प्लेन्स वगैरह होते हैं वो टोटली डेंसिटी एंड फर्टाइल होते हैं. वहाँ पे वो जो चीज़ें हम क्या कहते हैं पाई गई है, वहाँ पे वो चीज़ें हम उगा भी सकते हैं, राइट. तो जो चीज़ें हमें पहले से ही इंडिया में बहुत नेचुरली इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हमें पहले से ही मिली हुई है इन आवर हेरिटेज, वी कैन से दैट इट वाज आवर रिसोर्सेज. बट दिस रिसोर्सेज वी आर यूजिंग देयर आवर क्वालिटी, कैपेसिटी एंड यूटिलिटी, राइट. किस तरह से हम यूज़ करते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में स्टोर्ड है बेस्ड ऑन क्वालिटी, कैपेसिटी एंड रिसोर्स एंड यूटिलिटी, ठीक. सो इट बिकम आवर हेरिटेज. वो क्या है, हमारा हेरिटेज इन द टर्म ऑफ रिसोर्सेज. Now, resources also that can find out and can fulfill a certain aims. वो जो है वो चीज़ें क्या करती है, हमारी certain aim, जो हमारी जो चीज़ें हैं, जो हमें requirement है, वो क्या कर रही है, उसको fulfill ही कर रही है, right. Anything that can be aimed and used in the complete human necessity, जो चीज़ें ह्यूमन नेसेसिटी को, ह्यूमन की यूटिलिटी को कंप्लीट कर रहा है, दैट वी कैन से दैट इट बिकम अ रिसोर्सेज. The people of the earlier there were not aware about this mineral available below the surface of the soil, hence could be not useful. जो मिनरल्स, सी, बहुत सारे मिनरल्स वगैरह हमें मिले हैं, राइट, जो पहले के लोगों को नहीं पता. बट विद द टेक्नोलॉजी नाउ वी कैन नो दैट व्हाट द मिनरल्स वी हैव, राइट. एंड उसी की वजह से आज हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, राइट. That is why those minerals were not considered as a resources, but there were resources useful in the modern man. तब वो कंसिडर्ड नहीं हो रहे थे रिसोर्सेज के लिए, बट नाउ ये जो चीज़ें हमें मिल रही है एज वी आर यूजिंग लाइक अ मॉडर्न मैन. क्योंकि विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज हैं जो जिससे वो चीज़ें हम क्या कर पा रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं. That the things that can help a man welfare and that satisfy demand as resources for men. ये चीज़ें क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है डिमांड को, एंड वो हमें क्या कर रही है, कंप्लीट कर रही है हमारे रिसोर्स को, और फुलफिल कर रही है पूरी की पूरी चीज़ें जो हमें पाई गई है, राइट. नाउ नेचुरल रिसोर्सेज की पहले तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करेंगे, ठीक है. नेचुरल रिसोर्सेज आर एनीथिंग दैट एग्जिस्ट नेचुरली इन एनवायरनमेंट. एज यू नो दैट नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, जो चीज़ें जो हमें नेचुरली पाई गई है एनवायरनमेंट से. सो इट इज़ अवेलेबल इजीली फॉर यूज टू मैन. नाउ देर आर 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज: वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज, राइट. पानी जो है आपको भी पता है हमें पहले से ही मिला हुआ है, राइट. बट उसका यूज़ किस तरह से करना है, किस तरह से हम, आज हमारा पानी है वेस्ट भी इतना जा रहा है, पॉल्यूशन वगैरह में भी जा रहा है, इतना वाटर पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है. नाउ डेज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर वेस्टिंग ऑल दिस थिंग्स, राइट. जितना हम उसको यूज़ कर रहे हैं ना उतना हम वेस्ट भी कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए. वाटर पॉल्यूशन क्यों होता है, इतने ड्यू टू द केमिकल्स,
राइट। जो भी केमिकल रिलीज वगैरह होती है वो सारे के सारे नदियों में जाते हैं, राइट, पॉन्ड्स में जाते हैं, जो पानी का बिगाड़ कर रहे हैं। और पानी के बिगाड़ से क्या हो रहा है, बहुत सारी डिजीजेस फैल रही है जो हमें कहीं ना कहीं इफेक्टिव ही होती है। सो वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज, ये जो चीज़ है जो हमें पहले से ही पाई गई है, राइट। लिथोस्फियर इज व्हाट, लिथोस्फियर इज वन टाइप ऑफ सरफेस दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द अर्लियर फ्रॉम द अर्थ ओनली, राइट। ये जो रिसोर्सेज पाई गई है उसका हमें उतना यूज़ भी करना चाहिए, जितना हम वेस्ट कर रहे हैं उतना उससे तो बेटर है कि हम उसका यूज़ करें, यूटिलाइज करें और वो इफ़ेक्टिव बने हमारी एवरीडे डे टू लाइफ में। सो अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाए तो एज यू नो दैट एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन नेचुरली दैट विज द एनी इन्वायरमेंट दैट इज कॉल्ड द natural resources. Now these resources are divided into three types. कौन से टाइप्स हैं, तीन टाइप्स, विच आर द वाटर, मिनरल एंड लैंड. Three resources were that: water mineral resources, mineral resources, and land resources. Now first we will talk about the water resources. What is water resources? So the water resources of India include the river, lake, sea, etc. The river of India are divided into two on the basis of origin and characteristics: river of northern India and the river of southern India, right. अगर water resources की बात हम करें तो ये जो हमारे रिसोर्सेज है वो डिवाइडेड है नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में. अगर रिवर की बात करें तो आपको पता ही है रिवर्स जो है वो डिवाइडेड है, राइट. बहुत सारी रिवर्स आपको अलग अलग जगह पे मिलेगी. बट अगर हम बात करें नॉर्थ और साउथ की तो रिवर्स उसमें भी क्या है डिवाइडेड है. तो पहले हम नॉर्थ इंडिया की रिवर्स के बारे में बात करेंगे, देन हम बात करेंगे साउथ इंडिया के रिवर्स के बारे में. सो इफ वी टॉक अबाउट द रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, द सिंधु, the Ganga, or we can say the Ganges, Yamuna and the Brahmaputra are the river of the northern India. They are perennial in nature. The Ganga is also known as the Bhagirathi, and there is a triangular fertile plain near the delta of the river Ganga. The Ganga and the Brahmaputra are the major waterways of India and used for navigation purposes. Beside this, the Jhelum, Chainam, Satluj, Ravi and the Bias also flow in the north. Every year, devastating flood in Koshi River in the state of Bihar destroyed the lives and the property of people of that area. अगर हम नॉर्थ की बात की, रिवर्स की बात करें तो पहले तो अगेन कौन से रिवर्स आएंगी, सिंधु, गंगीस और गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र आर द मेजर रिवर ऑफ नॉर्थन इंडिया. ये क्या है, मेजर रिवर्स है किसकी, नॉर्थ इंडिया की. सिमिलर दैट अगर हम बात करें झेलम, चैनम, सतलज, रावी, ब्यास, ये भी क्या होती है, फ्लो होती है नॉर्थ इंडिया में फ्लो होती है, राइट. और कोशी रिवर जो है तो आपको ऑलमोस्ट पता ही है फ्लड वगैरह आता रहता है, राइट. तो ऑलमोस्ट वो जो फ्लड वगैरह आता है तो वो बिहार के साइड जो लिविंग लाइफस्टाइल प्लेन्स वगैरह है वो क्या होती है, डिस्ट्रॉयड होती है लाइफ्स एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ दैट एरिया. नाउ यू कैन सी हियर द मैप. यहाँ पे आपको मैप दे रखा है. ये मैप जो है वो रिवर और लेक का दे रखा है. जैसे कि स्केल लाइन में आप देखो, यहाँ पे मैंने जूम भी किया है कि रिवर का है वो उसका सिंबल देखो और लेक का देखो. अब रिवर के सिंबल में देखो नॉर्थ की, ये पूरा का पूरा क्या, रिवर एंड लेक्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ये नॉर्दर्न इंडिया का ही बता रहा है, राइट. तो वी कैन सी ऊपर की साइड आप देख सकते हो रिवर्स वगैरह का, जो देखो कितनी सारी जो है लेक्स वगैरह है, वूलर, चेल, ठीक है, ये सारी आप देख रहे हो, सांभर, ये सारे क्या है, लेक्स ऊपर की साइड यू कैन सी हियर. एंड अगर हम बात करें क्या कहते हैं कि भाई रिवर्स की, तो आप रिवर्स भी देख सकते हो. ब्यास देखो, चेनम देखो, झेलम देखो, नॉर्थ के साइड ऊपर की साइड देखो, ये सारी आपको क्या मिलेंगी, रिवर्स भी मिलेंगी. तो ये सारी रिवर्स किसकी है, नॉर्दर्न इंडिया की बात की गई है कि नॉर्दर्न इंडिया में ये रिवर्स पाई गई है. ये याद रखना स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि कौन सी रिवर नॉर्दर्न साइड पाई गई है, कौन सी रिवर साउथ के साइड पाई गई है, राइट. सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रिवर ऑफ साउथ इंडिया, रिवर्स लाइक तापी, नर्मदा, महानदी फ्लो डाउन फ्रॉम द माउंटेन इन सेंट्रल इंडिया. The Narmada and the Tapi flow towards the western and merge with Arabian Sea, with the Godavari, Krishna, Kaveri and Tungabhadra, and flow eastwards and emerge into the Bay of Bengal. These rivers flow through the uneven surface of the group
group like a high and slopy regions, right, and therefore from waterfalls. That is why these rivers are not used as a waterways, they are used in irrigation purpose, and its production is hydroelectricity. Now first of all we will learn that which rivers are flowing from southern India. So Tapi, Narmada, Mahanadi flow from the mountains in the central India. Now Narmada and Tapi flow towards the west and merge with Arabian Sea. कहाँ से फ्लो होती है? तो वेस्ट के साइड से, राइट, वेस्ट के साइड से फ्लो होती है, एंड मर्ज किस में होती है? अरेबियन सी. यू कैन सी हियर द आई हैड शोड द मैप ऑल्सो, अरेबियन सी. नाउ वाइल द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड तुंगभद्रा जो है ईस्ट वर्ड्स होती है, ईस्ट के साइड से, एंड मर्ज किस में होती है? बे ऑफ बंगाल में. देखो तापी, नर्मदा एंड महादवी फ्लो होती है माउंटेन सेंट्रल इंडिया से, एंड नर्मदा एंड तापी कहाँ से फ्लो होती है? तो वेस्ट से, और मर्ज किस में हो रही है? अरेबियन सी में. कौन सी? तापी एंड नर्मदा वेस्ट से, मर्ज किस में हो रही है? अरेबियन सी में. और अगर हम सिमिलरली बात करें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड तुंगभद्रा कहाँ से फ्लो हो रही है? ईस्ट साइड से, और मर्ज किस में हो रही है? बे ऑफ बंगाल में. दिस रिवर फ्लो द अनइवन सरफेस, उनका जो सरफेस होता है वो क्या होता है? अनइवन होता है. एंड लाइक हाई एंड स्लोपी रीजन, हाई और स्लोपी रीजन्स में होता है, ठीक है. बहुत सारा हाई रीजन भी आपको मिलेगा, देन अगर द स्लोप मिलेगा तो स्लोपी रीजन वगैरह पूरा का पूरा होता है. तो आर देयरफॉर फ्रॉम वाटरफॉल्स, आपने वाटरफॉल्स वगैरह देखे ही हैं, ऊपर हाई देन अप पूरा पूरा डाउन आता रहता है. तो बीच में उनके यहाँ टोटली क्या होता है? अनइवन सरफेस होता है. तो स्लोप भी हो, सरफेस थोड़ा सा ऊपर भी हो, डाउन भी हो. दैट इज वाई दिस रिवर आर नोट यूज्ड एज वाटरवेज. इसीलिए ये जो रिवर्स है ना वाटरवेज में यूज नहीं होती. दे आर यूज फॉर इरीगेशन पर्पज इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. इनके इस रीजन की वजह से, हाई एंड स्लोपी रीजन की वजह से, ये जो है रिवर्स वो वाटरवेज में यूज नहीं होती, बट वो किस में यूज होती है? इरीगेशन पर्पस एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, राइट. नाउ हियर आप एक पूरा का पूरा टेबल देख रहे हो, राइट, जिसमें रिवर्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड बेनिफिशरीज लिखे हुए हैं. तो अगर मैं बात करूँ द नर्मदा रिवर, तो नर्मदा प्रोजेक्ट कहाँ? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र, राइट. अगर कृष्णा की बात करें तो नागार्जुना प्रोजेक्ट, तुंगभद्रा की बात करें तो तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, कोशी की बात करें रिवर कोशी तो कोशी प्रोजेक्ट, ठीक है. महानदी की बात करें तो हीराकुंड प्रोजेक्ट, एंड सतलज की बात करें तो भाखरा नगल प्रोजेक्ट. कहाँ कहाँ पे है? तो नागार्जुना प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश, कोशी बिहार, हीराकुंडा प्रोजेक्ट कहाँ पे? तो ओडिशा, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट भांगड़ा नगल प्रोजेक्ट कहाँ? तो पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान. ये जो रिवर्स है और उनके मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स का करें, और उनके बेनिफिट्स जो हैं वो कौन से स्टेट्स को जाती है, किस तरह से, उनके नेम भी लिखे रखिए. ओके स्टूडेंट्स, सो आज हमने यहाँ पर रिवर्स तक रखा, नॉर्थ एंड साउथ रिवर्स के बारे में पढ़ा, मॉनसून रीजन के बारे में पढ़ा, डिफरेंट विच रिवर्स वेर कम इन द नॉर्थ साइड एंड विच रिवर्स वेर कम फ्रॉम द साउथ साइड, ये रखा, लर्न किया. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं वो भी लर्न करेंगे, ठीक है. सो अभी तक हम इतना ही रखते हैं. टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू.